We are discussing the first cause of common failure that is associated with a mistaken ambition for student on part of his parents, जिसमें राइटर ने हमें बताया है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है while he is supposed to learn another subject that is distasteful to him, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से they do fail. Have a look at the bottom third sentence of the paragraph. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him. अगर ऐसा लड़का फेल होता है तो उसकी वजह यह है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता which is distasteful to him, which does not appeal him, and that he feels is leading him in the wrong direction, और वो जानता है कि it runs counter his taste. If the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is completed. So what is the solution of such sort of failure? The solution lies in the active support and attention of the college. If college pays attention to such students and grasp in the beginning the emerging interest of the students, definitely such cases could be controlled. Another type of boy who does not try is a very bright boy who has always done his schoolwork without effort and who has never learned what real application is. अब दूसरी टाइप के बच्चे जो फेल होते हैं कॉलेज में वो स्टूडेंट्स हैं who are already bright, जो कि ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसने अपना स्कूल वर्क बिना किसी एफर्ट के किया है and who has never learned what real application is. But where the problem lies, उसको नहीं मालूम है कि उसके नॉलेज की रियल एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेज क्या है. He supposes, he imagines, he assumes that he can float through college with as little effort as he did through school. उसको लगता है कि वो कॉलेज में भी उतनी ही एफर्ट कर लेगा और पास हो जाएगा जितनी एफर्ट उसने स्कूल में की है. So float through college, he can pass college, he can easily go through his courses. I sometimes think that the bright boy who is always dependent on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. अब राइटर के मुताबिक जितने भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा pitiable, सबसे ज़्यादा काबिल रहम जिस पे राइटर को तरस आता है वो कॉलेज स्टूडेंट है जो कि बहुत ब्राइट है और वो फेल हो जाता है. For it is almost a tragedy, क्योंकि ये एक अलमिया है, ये एक बड़े दुख की बात है to see all of his keenness going to waste, कि उसकी तमाम keenness, उसकी तमाम ability, उसकी जो devotion है वो ज़ाया हो रही है, and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. क्योंकि कॉलेज ने उसको जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी दी है उसका जो एक रिसेप्टिव माइंड है जो उन चीज़ों को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, वो उसकी इस हैबिट की वजह से ख़राब हो रहा है. The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude. अब सॉल्यूशन क्या है? एज आप देख रहे हैं इस ऐसे का पैटर्न है कि राइटर जो है वो आपको रीजंस बताता है फेलियर की एंड देन एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ ही कम्स अप विद द सॉल्यूशन. अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? a change of attitude, एक रवैये में तब्दीली and the forming of a completely new set of habits. और पूरे तरीके से he has to evolve himself into a thoroughly new student with a new set of habits. No one can do this but the boy himself. ये काम लड़का खुद ही कर सकता है. All that the rest of us can do is to point out what is the matter and what is the purpose of other persons around, what is the purpose of third person around. He can only point out, he can only identify the problem, but who is there to correct the problem? It is the student himself or herself जो इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए एक चेंज ऑफ हैबिट्स. मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. A third reason of failure, the question of health, both physical and mental, is always one of the reason for failure. अब एक और वजह जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं, that is the declining health conditions.
इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर कॉलेज में एक एडिक्वेट, एक प्रॉपर हेल्थ सर्विस अवेलेबल है, and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. अब फेलियर से किस तरह बचा जा सकता है? अगर कॉलेज स्टाफ और कॉलेज डॉक्टर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक कोऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, तो फेलियर से बचा जा सकता है. And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities. कि जब ये तमाम चैनल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में लिंक करते हैं, तो उससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस या फिर उसके प्रोग्रेस में डिक्लाइन की वजह पता चलाई जा सकती है. इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट एपरेंट, अगर आपका एकेडमिक वर्क, स्टूडेंट का कोर्स वर्क अच्छा नहीं हो रहा और उसकी रीज़न भी इज़ नॉट एपरेंट, उसकी रीज़न भी क्लियर नहीं है. इट इज़ माई कस्टम, ये मेरी आदत है, इट इज़ माई हैबिट ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन. तो फिर राइटर क्या करता है कि वो, एज आई हैव टोल्ड यू दैट राइटर was a former educator at a Columbian college. So वो अपने उसी एक्सपीरियंस को लेके बात कर रहा है कि अगर रीज़न क्लियर नहीं होती स्टूडेंट की अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस की, तो फिर वो उसको सजेस्ट करता है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाए, a thorough medical physical examination. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. और ये जान के सबको हैरानी होती है कि यूनिवर्सिटी फिजिशियन ने, यूनिवर्सिटी डॉक्टर ने, कॉलेज के डॉक्टर ने जो रीजंस फाइंड आउट की हैं कि सर्टनली उस बॉय की हेल्थ जो है इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज, दैट इज़ वाई ही इज़ अनएबल टू पे हिज फुल अटेंशन टुवर्ड्स हिज स्टडीज़. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months. So what writer states कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हैं, जिसमें गले की ख़राबी है, नींद का ना आना, बहुत सारी नर्वस इश्यूज़ जो हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं दैट हैव बीन ब्रॉट टू लाइट, जो कि बताए गए हैं, जो कि मंजर आम पर लाए गए हैं, दैट हैव बीन मेड प्रोमिनेंट बाय द कॉलेज डॉक्टर. Occasionally, one meets an old-fashioned person like the father who told a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he wouldn't consent to the operation. So, sometimes किसी स्टूडेंट का जो पेरेंट है वो उनको बताते हैं कि वो अपने बच्चे के टॉन्सिल्स रिमूव करवाना चाह रहे हैं. ही वुडंट कंसेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आएगी ही वुडंट कंसेंट, ही वुडंट गिव हिज परमिशन. ही असर्टेड, वो श्योर करते हैं, वो फोर्सफुली बोलते हैं दैट गॉड पुट दोज टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट फॉर सम गुड पर्पस. अब यहाँ पे जिक्र हो रहा है पेरेंट्स की स्टबर्नेस का, उनकी ज़िद का कि टॉन्सिल्स रिमूव नहीं करवाएंगे बिकॉज इफ़ दे आर देयर सर्टनली फॉर अ पर्पस. यानी एक लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं बच्चे को ट्रीट करने का. ना ट्रीटमेंट होगी, ना उसका स्टडीज़ की तरफ उसका फोकस जाएगा और ना वो हेल्दी होगा. ऑफ कोर्स सच केसेस आर रेयर. इस तरह के केसेस रेयर हैं, बहुत थोड़े हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड. लेकिन ये ज़रूरी है, रिमेंबर, नेसेसरी नहीं बोलना, नेसेसरी, ये ज़रूरी है to keep constantly in mind कि हमेशा ये माइंड में रहे the simple fact that there is no substitute for health, कि हेल्थ का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेट, कोई मुतबादिल नहीं है. And that however such a man may know it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear or the world's problem. और उस स्टूडेंट के अंदर ज़रूरी है कि हो उसके अंदर वो फिज़िकल विगर, उसके अंदर वो फिज़िकल स्ट्रेंथ, वो पावर हो पोजेस, उसकी पोजेशन में, जिससे वो वर्ल्ड के प्रॉब्लम जो हैं उनको टैकल कर सके. ठीक है, तो अब तक के लेसन में हमने स्टूडेंट्स की जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसमें हम 2 टाइप के स्टूडेंट्स जो हैं उनको रीड आउट कर चुके हैं.
फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं who do try but their try is not going into the right direction. They are more concerned with arranging things rather than studying books. ज़्यादा टाइम उनका बुक खोल के बाकी चीज़ें सोचने पे लग जाता है. दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट्स हैं जो ट्राई नहीं करते, उनमें ब्राइट स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो अपनी स्टडी को टाइम कम देते हैं और उनको लगता है कि वो उसी थोड़े टाइम के साथ पास कर जाएंगे. एंड सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं एंड वंस देयर हेल्थ इशू इज़ रिजॉल्व दे आर कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड कैन पास देयर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स. बाकी का लेसन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट कराऊंगी. आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. सी यू टुमारो.